cleared in which we have already taken in the previous lectures. The same thing we will have in today's lecture. So we have started DPR, that is the detailed project report. So we have gone through the different aspects related with the DPR. So different aspects already we have covered the different aspects of DPR. So same way we have seen the four aspects of the DPR, that is the detailed project reports. So again some bits related with the DPR were remaining. So in today's lectures we will try to cover the concepts regarding detailed project reports. The next is the contents of DPR, which contents to be included in DPR, that is the detailed project reports. So general information में क्या क्या रहेगा? General information, the informations provided in this section could be as follows. Name of the industrial concern. First is the foremost thing is nothing but the name of the industry. Okay, now which industries is trying to give the it is interested for construction work. So here is the name is it is most important. Okay, the name of the industrial concern, constitution of the proposed company. That means whether it is a public or the private limited or the public sectors or the private sectors. So constitution of the proposed company, it is also very important for the DPR. So here we have to distinguish whether it comes comes under the public sectors or whether it comes under the private sectors. Okay, so there should be bifurcations. There should be that is whether it comes under the public or the private sectors. Okay, सबसे पहले उसका नाम आएगा कि और नेक्स्ट नंबर टू में आएगा whether it is related with the public sectors or whether it is related with the private sectors. ठीक है. Up next is the nature of the industries and production. Next is number three is the nature of industry, whether it is a small scale industries, whether it is a large scale industries, whether it carries out the small matlab a small construction work it has been carried out by the company, or large massive structures or the large constructions or the various heavy constructions it has been carried out by the particular industries. The nature of industries, कौन सी industries है, whether it is a small scale industries or large scale industries, मतलब कौन से काम करती है. ठीक है ना, वो उसका reputations और उसका मतलब expansion कैसा है, whether it deals with the smaller projects or whether it deals with the large scale projects. ठीक है, the nature of industries. Next is nothing but the name of the promoters and their contribution टू द प्रपोज प्रोजेक्ट. अब कौन से प्रमोटर्स क्या करेंगे, अब इन्वेस्टर्स, प्रमोटर्स इज एज गुड एज इन्वेस्टर्स. ठीक है, तो अब वो कौन से इन्वेस्टर्स रहेंगे, वी शुड गिव देयर शुड बी अ नेम ऑफ दैट प्रमोटर्स एंड उसका कॉन्ट्रीब्यूशंस. ठीक है, हाउ मच परसेंटेज ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन विल बी कैरिड आउट बाय दैट प्रमोटर्स, बाय देयर इन्वेस्टर्स. ठीक है ना, द इन्वेस्टर्स और प्रमोटर्स जो रहेंगे, हाउ मच एट अ व्हाट लिमिट दे विल इन्वेस्ट द मनी इन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोजेक्ट. ठीक है ना, at a what extent they will that is contribute for the proposed project. ठीक है ना, कितना contribution करेंगे, उसका contribution क्या रहेगा. ठीक है, so this contribution is again for the different promoters. ठीक है. Now, next is nothing but fifth point related with the general information is cost of the project move. ठीक है, सबसे important क्या रहेगा, next is the cost of the project. So cost of the project is also very important कि what should be the cost of the project. अब ये इसके अगेंस्ट में इसका इससे मालूम पड़ेगा कि what should be the cost of the project. ठीक है ना, what is the cost of the project. नेक्स्ट इज नंबर टू इज इसके बिट्स थे. ठीक है, इन्फॉर्मेशन के ये सारे these are the 5 bits related with the information provided in this sections. Next is number two, main bit is nothing but the means of finance. What are the different means of finance? तो कैसा कैसा फाइनेंस आप अरेंज करेंगे, what are the different means to the government agencies or the private sectors or the different means are there. What will be the means for the that is the contributions. ठीक है ना, contribution करना है या फिर collection करना है, तो what are the different means, on what basis you will contribute, they will collect the money. ठीक है, the means of finance. नेक्स्ट इज नंबर टू इज प्रमोटर्स डिटेल्स. प्रमोटर्स जो रहेंगे उसके डिटेल्स भी इंपॉर्टेंट है. द बिजनेस एंड द फैमिली बैकग्राउंड ऑफ द प्रमोटर्स आर मेनली डिस्कस्ड अंडर दिस हेडिंग्स. तो प्रमोटर्स के सबसे पहले उसका बिजनेस क्या है. ठीक है ना, प्रमोटर्स प्रमोट कर रहे हैं कोई भी बिजनेस को,
तो उसका क्या है, whether it is having a background related with the construction work, whether it is having a background related with the production work, whether it is having a background related with the execution of work. तो कैसा है, what is the background, ठीक है ना, तो background तो क्या था और पिछला उसका business क्या था, the business and background, ठीक है। उसने इससे पहले में कोई बिजनेस इससे रिलेटेड किया था, या फिर उसका बैकग्राउंड फैमिली बैकग्राउंड क्या था, उसका रिलेटेड उसका कंसर्न क्या था रिलेटेड विद द बिजनेस, ठीक है ना, तो बैकग्राउंड भी और उसका बिजनेस भी। The business and the family background of the promoters are mainly discussed under these headings. Their previous business experience, again उसका जैसा अभी बैकग्राउंड फैमिली बैकग्राउंड भी मालूम करेंगे उसका, और उसका फिर फैमिली बिजनेस था या फिर उसका मतलब बिजनेस क्या था, और उससे रिलेटेड उसका एक्सपीरियंस क्या था। एक्सपीरियंस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इज वेदर इट इज हैविंग अ रिलेवेंट एक्सपीरियंस, जो काम कर रहे हैं अभी प्रेजेंट केस में, द कोई भी एक कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, या फिर कोई भी प्रोडक्शन वर्क हो रहा है, या फिर कोई एग्जीक्यूशन वर्क हो रहा है, या फिर कोई एक कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवे हो रहा है, या फिर कुछ भी हो रहा है, तो उससे रिलेटेड उसका एक्सपीरियंस था प्रीवियस ईयर्स में। तो we have to see the previous background or the previous things, whether he is having an experience related with the particular type of work, okay na? So experience. Number three is nothing but the auditor's report of the previous business and the reasons for the closure will also be clarified. Yes. अब उसका ऑडिटर रिपोर्ट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। ऑडिटर रिपोर्ट डिफाइन करेगा कि उसने जो काम किया था प्रीवियस ईयर्स में, वेदर ही हैज क्लोज्ड इन अ प्रॉपर मैनर्स, उसने अधूरा काम तो मतलब वेदर ही हैज लेफ्ट द इनकम्प्लीट वर्क, और वेदर ही हैज कंप्लीटेड द एग्जीक्यूटेड और कंस्ट्रक्टेड द बिल्डिंग up to the मतलब उसका पूरा लास्ट स्टेज तक कंस्ट्रक्शन हुआ, और द थिंग्स which has been carried out by the particular promoter, it has been completed with a stipulated time or not, or whether it has he has lived in an incomplete way, उसने मतलब कुछ छोड़ा है या फिर कुछ उसका काम छोड़ा है, उसका रेपुटेशन उसका बैकग्राउंड उसने पिछले बिजनेस में कैसा था, ठीक है। तो ऑडिटर्स रिपोर्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर ऑल दिस जस्टिफिकेशन, ठीक है ना, ऑल दिस बैकग्राउंड फाइंड करने के लिए ऑडिटर रिपोर्ट्स प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। ऑडिटर रिपोर्ट क्या करेगा, वो एक आइडिया देगा कि पिछले मतलब प्रीवियस वर्क में व्हाट वाज द रेपुटेशन, ठीक है ना, व्हाट वाज द reputation for the particular type of work, ठीक है ना, whether he has done a particular type of work in a proper manner, or in an incomplete, or in a whether he has satisfied all the conditions, we have fulfill all the needs or the requirements of the particular type of constructions, or he has skipped some of the qualities or some of the quality concern related part, अगर कुछ ऐसा किया है उसने पिछले इसमें, तो this auditor report gives an idea for this, ठीक है। Whether the proposed venture is related with the existing business and will help them do better, ठीक है। अब उसने जो प्रेजेंट क्या काम करेगा, तो उससे एग्जिस्टिंग जो था पिछला जो काम था, वेदर इट इज हैविंग सम नॉलेज फॉर दिस, और उससे रिलेटेड अगर है तो इट विल बी हेल्पफुल, ठीक है, एग्जिस्टिंग बिजनेस एंड विल हेल्प देम टू डू बेटर, ठीक है। Marketing and selling arrangements is also nowadays it takes a very important matlab, there is a term for this business point of view. This marketing and selling arrangement is again very very important aspects, it has been covered in this, that is related with DPR, that is detailed project reports में। तो मार्केटिंग एंड सेलिंग अरेंजमेंट इट प्लेज नाउअडेज, इट प्लेज अ मेजर रोल, ठीक है ना, मेजर पार्ट है अभी नाउअडेज। मार्केटिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। कोई भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है या फिर कोई भी प्रोडक्शन हो रहा है, या फिर वेरियस इक्विपमेंट्स और वेरियस थिंग्स आर प्रोड्यूस इन द फैक्ट्रीज, या फिर नाउअडेज एडवांस कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, तो एवरीवन शुड बी फेमिलियर अबाउट द थिंग्स, ठीक है ना। तो मार्केटिंग एंड सेलिंग अरेंजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। मार्केटिंग जो एस्पेक्ट्स है, और मार्केटिंग जो दैट इज द स्ट्रेटजीज वी हैव टू यूज, ठीक है। The different strategies related with the marketing is nowadays it is very very important, ठीक है। उसके लिए marketing and selling arrangements is nowadays it is the most important aspect of the DPR, ठीक है। So brief notes on the product, major uses, scope of the market, possible competition from the subsidies. Yes. तो जैसे मैंने बताया था कि मार्केट देयर शुड बी क्राइटेरिया फॉर whether we are fulfilling the needs, or whether we are in a verge of competitions. We are whether we are our product or our constructions, it is in the verge of whether we are in a line of competition.
So this possible competition from substitutes, it is to be considered. Okay. Number two is that nothing but detailed notes on the existing and future demands. Detailed note it is to be produced on existing and future. मतलब अभी क्या काय पे काम हो रहा है और now after 10 years, after 5 years, after 6 years, after 4 years, तो after future में whether this construction work will be beneficial or whether this production of a particular item of work or whether this particular that is product is beneficial for future point of view is not. ठीक है. तो ये दोनों एस्पेक्ट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर. ठीक है, वी हैव टू फुलफिल द करंट रिक्वायरमेंट्स एज वेल एज द फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स. ठीक है ना, करंट रिक्वायरमेंट्स में भी फुलफिल होना चाहिए और फ्यूचर में अगर उसका डिमांड्स होता है तो वी शुड स्कोप ऑफ fulfill the requirements in the future also. Okay? So detailed notes on the existing and the future demand, information on the export possibilities and the nature of the competition from the foreign competitors. Okay? So here again the product which has been launched or the construction work or जो भी था, so it is we have to compete with the foreign countries also. Okay? Whether our the demand of our particular type of product is whether it is, the demand of the particular type of product is in outside the country, it is not है ना. So whether it is helpful for the मतलब needs fulfill हो रहा है नहीं हो रहा है, या फिर information on the export possibilities and the nature of the competition from the foreign competitors. ठीक है ना, we have to fulfill the requirements of the foreign competitors also. ठीक है. Information about distribution, selling agents and selling organizations. Selling agents के या फिर distributions के what are the different distributions जो होंगे उसके agencies के, उसके भी information होना चाहिए. Selling agents के informations हो जाना चाहिए. There should be a selling organizations. There should be some tie-ups with them regarding the selling of a product, regarding the selling of the flats बोलो या फिर selling of the schemes बोलो, है ना. तो कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू में अगर कोई सेलिंग हो रहा है तो देयर शुड बी सम डीलिंग्स विद द डिस्ट्रीब्यूशंस एंड सेलिंग एजेंट्स. ठीक है, तो देयर शुड बी सम देयर इज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द कंस्ट्रक्शन फर्म एंड द सेलिंग फर्म. जो कंस्ट्रक्ट कर रहा है वो और जो सेलिंग कर रहा है वो. ठीक है, तो देयर इंफॉर्मेशन मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग शुड बी देयर. ठीक है. Next is second last point is the remunerations of the selling agents and relationship. Yes, अभी वही चीज मैं बताई कि there should be a relationship and there should be some amount paid to the selling agents. ठीक है ना, selling agents को भी कुछ ना कुछ देना चाहिए so that our product or our construction जो भी flats है या फिर जो भी चीज है it is sold in a time period. ठीक है ना, वो time period में sale होना चाहिए और it should be beneficial. ठीक है ना, it should be benefited. Details regarding the trend in the prices during the last 5 years. Yes, the details regarding trends. What is the new trends? Okay, new trends in last 5 years. So we have to see the market scenario, or we have to read, or we have to go through the 5 years. That is the previous 5 years कंस्ट्रक्शन वर्क. अगर कोई चीज कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो पिछले 5 सालों में क्या कंस्ट्रक्शन हुआ था, एंड नेक्स्ट फॉर present construction of work, which renovations can be done, which technologies can be used, so that it is beneficial or so that it can be profitable to the society. Okay, so details regarding the trends in prices during the last 5 years. Next is particulars of the project. What are the different particulars of the project? So number one is the product mix and capacity, location and site, प्लांट एंड मशीनरीज, रॉ मटेरियल्स, यूटिलिटीज. अब पर्टिकुलर्स ऑफ द प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है. देखो, सबसे पहला इंक्लूड क्या होगा उसमें, प्रोडक्ट का मिक्स एंड कैपेसिटी. ठीक है. नेक्स्ट उसका लोकेशन, वेदर इट इज लोकेटेड नियर बाय और वेदर इट इज लोकेटेड विद इन द लिमिट, अगर है विद इन द दैट इज द पैरामीटर्स में, अगर है विद इन द परमिसेबल लिमिट में है, और वेदर इट इज सिचुएटेड अवे फ्रॉम द सिटी. ठीक है ना, तो लोकेशन एंड साइट, उसके मतलब साइट पे जो है वो प्लांट मशीनरीज अवेलेबल है नहीं है, रॉ मटेरियल्स प्रॉपर है नहीं है, यूटिलिटीज प्रॉपर प्रोवाइडेड है नहीं है, तो ये सारा पर्टिकुलर्स ऑफ द प्रोजेक्ट है. ठीक है. नेक्स्ट इज टेक्निकल अरेंजमेंट्स. व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निकल अरेंजमेंट्स फॉर दिस? am I audible to all of you? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir.
technical arrangements should be there. The technical infrastructures required to start the project, and whether the promoters have any foreign collaborations for the projects will be explained here. अब टेक्निकल अरेंजमेंट्स कैसा है कि टेक्निकल रिलेटेड विद ड्राइंग्स डिजाइनिंग पार्ट, ठीक है, टेक्निकल्स टेक्निकली मतलब कैसा है कि कोई भी चीज कंस्ट्रक्ट करना है तो वी शुड हैव अ सफिशिएंट दैट इज डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू, और डिजाइनिंग के जो ड्राइंग्स जो रहेंगे टेक्निकली कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स इज रिक्वायर्ड। कोई भी चीज स्टार्ट करना है तो वी शुड बी टेक्निकली स्ट्रांग, और वी शुड हैव ऑल द थिंग्स टेक्निकली रिलेटेड जो थिंग्स रहेंगे वो सारे वो ऑल द थिंग्स शुड बी अवेलेबल विद अस, मतलब उसके टेक्निकल ड्राइंग्स अवेलेबल होना चाहिए, उसका डिजाइनिंग है या फिर उससे टेक्निकल रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट जो है ऑल द थिंग्स रिलेटेड विद द टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स, इट इज मस्ट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ एनी प्रोजेक्ट, ठीक है, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी प्रोजेक्ट, ठीक है। The technical infrastructure is required to start the project, and whether the promoters have any foreign collaborations। अब start करना है तो उसके लिए कैसा है कि nowadays फॉरेन में और जो फॉरेन की कंट्रीज में जो कंस्ट्रक्शन वर्क बोलो या फिर उनके जो टेक्नोलॉजीज है और उनके जो मेथड्स है बोलो या फिर इक्विपमेंट्स बोलो, तो दे आर यूजिंग एडवांस इक्विपमेंट्स, दे आर यूजिंग एडवांस टेक्निक्स, दे आर यूजिंग द एडवांस मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो देयर शुड बी सम कोलैबोरेशंस, ठीक है ना, उससे उनसे वेदर देयर आर प्रमोटर्स हैविंग आर हैविंग सम रिलेशनशिप विद द फॉरेन, कोलैबोरेशन इज देयर, फॉरेन रिलेशनशिप इज देयर, सो दैट आवर प्रोजेक्ट शुड आल्सो बी बेनिफिशियल, ठीक है। क्योंकि कैसा है कि अगर वहाँ के टेक्नोलॉजीज और वहाँ के कुछ ऐसे इन्वेंशंस है और वहाँ के कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स अगर यूज होते हैं, अगर अवेलेबल है तो सो दैट अवर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इट इज फास्ट एंड इट इज प्रॉफिटेबल बोलो या फिर इट इज मतलब डायरेक्टली इट इज इम्प्लीमेंटेड और इट डायरेक्टली बेनिफिशियल टू द सोसाइटी, ठीक है। उसका मनी पॉइंट ऑफ व्यू भी ज़्यादा मतलब उसका वेटेज होगा, और कुछ ऐसी नई चीज़ होगी तो देर विल बी बेनिफिटेड, इट विल बी बेनिफिटेड इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंस ऑल्सो, इन द फॉर्म ऑफ मनी ऑल्सो, ठीक है। तो देर शुड बी कोलेबोरेशंस। Number two is the cost of buying or selling or installing technical infrastructures and whether it is cost effective will be clarified under this heading। मतलब क्या है कि अब कोई चीज़ एस्टेब्लिश करना है, अब समझो एक रूम भी इस्टेब्लिश करना है या फिर उसमें टेक्निकल बॉडीज में टेक्निकल हैंड्स अगर आपको हायर करना है, तो देयर शुड बी टेक्निकल दैट इज स्किल्ड टेक्निकली जो विच इज हैविंग अ टेक्निकल साउंड नॉलेज जो रहेगा। तो ऐसा सेटअप्स स्टार्टअप्स में कोई सेटअप करना पड़ेगा, उसमें मतलब वेरियस कॉस्टिंग ऑफ बाइंग होगा, इंस्टॉलेशन होगा, टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, या फिर अगर कोई ऐसे एक्सपर्ट्स अगर हायर कर रहे हैं आप टेक्निकली साउंड जो है जिसका, तो वो सारा सेटअप होगा। या फिर इक्विपमेंट्स में अगर कोई चीज़ सेटअप करना है आपको टेक्निकली साउंड इक्विपमेंट से एडवांस इक्विपमेंट से, तो वो सारा आपको सेटअप करना है साइड पे। जैसा अगर सपोज एग्जांपल में अगर कोई कंस्ट्रक्शन साइड है मतलब एक हाई राइज बिल्डिंग हो रही है या फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, तो आरएमसी अगर सेटअप होता है या फिर आरएमसी से ज़्यादा कोई एडवांस इक्विपमेंट अगर साइट पे सेटअप हो रही है, तो वो सारा बाइंग है उसका, इंस्टॉलेशन से उसका मतलब प्रॉपर उसका रनिंग हो रहा है, प्रॉपर मेंटेनेंस है कि नहीं उसका, वो सारा हेवी इक्विपमेंट्स का टेक्निकल इक्विपमेंट्स का इट इज़ टू बी कैरिड आउट, ठीक है। Clear the cost of buying or installation of technical infrastructures and whether it is cost effective, ये important है, ठीक है। विद इन द परमिसेबल लिमिट है नहीं है, अगर कोई चीज़ आप खरीद रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं या फिर साइट पे उसको मतलब इट इज़ अवेलेबल ऑन साइट, अगर कोई आप परचेज कर रहे हैं तो वेदर इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव और नॉट। ऐसा है कि मेरे पास काम करना है 10 लाख का, मैंने 7 लाख की मशीन ले लिया या फिर 6 लाख की मशीन ले लिया, 5 लाख की मशीन ले लिया, है ना। अगर मेरे पास ओके करोड़ में काम है तो वी आर इन्वेस्टिंग फॉर 50 lakhs, वी आर इन्वेस्टिंग फॉर 20 lakhs फॉर परचेसिंग ऑफ एनी टेक्निकल मशीन और एनी एडवांस इक्विपमेंट और एडवांस मशीनरी, एडवांस टूल्स एंड प्लांट्स, ओके, है ना। अगर हाई मतलब जिसके पास पैसा ज़्यादा मतलब ज़्यादा एक्सपेंसिव करोड़ में अगर प्रोजेक्ट जा रहा है तो ओके इट इज़ इन्वेस्टेड। बट अगर कुछ लैक्स में अगर है तो स्मॉल स्केल कंस्ट्रक्शन वर्क है, तो whether it is cost effective or not, whether it is cost effective will be clarified under this heading, ठीक है। तो टेक्निकल स्टाफ से रिलेटेड पार्ट, इंस्टॉलेशन से रिलेटेड पार्ट, टेक्निकली मतलब इक्विपमेंट से रिलेटेड पार्ट, all this will be carried out in the, or all this will be covered in the technical arrangements, ठीक है। प्रोडक्शन प्रोसेस, यस। अब ये थोड़ा सा कैसा है कि प्रोडक्शन एक मतलब ये सीएमएल जो सब्जेक्ट है इट इज यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्क आल्सो एंड इट विल बी यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन आल्सो। कोई भी चीज प्रोडक्शन करना है, जैसे एक पेन है, सपोज देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ अ पेन, ठीक है।
अगर कंपनीज में अगर कोई पेन प्रोड्यूस हो रहा है तो उसका प्रोडक्शन, या फिर सिंपल इक्विपमेंट और सिंपल यूटेंसिल, या फिर सिंपल मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ मटेरियल इट हैज बीन प्रोड्यूस इन द कंपनी, तो उसका भी प्रोडक्शन वी विल स्टडी इन सीएमएल, एंड कंस्ट्रक्शन वर्क रिलेटेड पार्ट आल्सो मतलब सीएमएल में कवर होगा, ठीक है ना। एक्चुअली ये जो सीएमएल सब्जेक्ट है इट इज यूज इन कंस्ट्रक्शन फील्ड एज वेल एज इन द मैनेजमेंट ऑफ प्रोडक्शन फील्ड में भी यूज होता है, ठीक है। प्रोडक्शन जैसे मैकेनिकल जो फील्ड है उसमें भी, प्रोडक्शन फील्ड में भी ये यूज होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे प्रोडक्शन इन द सेंस अपने इसमें कंस्ट्रक्शन प्रोसेस समझ के चलो, इस पर ना कंस्ट्रक्शन प्रोसेस। तो प्रोडक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एक्सप्लेन इन डिटेल द टेक्निकल प्रोसेस प्रोड्यूस टू बी एम्प्लॉयड, मतलब अपने पास टेक्निकल क्या क्या प्रोसेस रहेगा, जैसा मिक्सिंग से स्टार्ट करें आप, बैचिंग रहेगा सबसे पहले, अगर कंस्ट्रक्शन का अगर एग्जांपल लेते हैं तो फर्स्ट इज द बैचिंग, है ना, सीमेंट सैंड एग्रीगेट्स का प्रॉपर बैच में रेशियोज में 1:2:4 1:3:6, या फिर वन वन 1/2 3 बोलो, या फिर उसके जो सीमेंट कंटेंट्स के जो वेरियस रेशियोज रहते हैं, तो प्रॉपर बैचिंग इज देयर, प्रॉपर बैचिंग होगा, फिर प्रॉपर मिक्सिंग होगा, फिर प्रॉपर लेइंग होगा, फिर प्रॉपर फिनिशिंग होगा। तो ये सारा जो प्रोसेस है, टेक्निकल प्रोसेस है, तो ये फ्रॉम स्टार्टिंग स्टेज अप टू द लास्ट स्टेज, ये तो एक मैंने आरसीसी का बताया, मतलब एक मतलब कंक्रीट का बताया, वैसा हर स्टेज में होगा, हर स्टेज में वेरियस प्रोसेसेस होंगे। तो ऑल दिस प्रोसेसेस विल बी कवर्ड इन दिस प्रोडक्शन बोलो, या फिर प्रोडक्शन प्रोसेस में, ठीक है। तो एक्सप्लेन इन डिटेल द टेक्निकल प्रोसेस प्रपोज टू बी एम्प्लॉयड। नेक्स्ट इज नंबर 2 इज enclose copy of the process flow chart, yes। अब कैसा होगा कि फ्लो चार्ट इट इज ऑल्सो टू बी प्रिपेयर्ड, मतलब कैसा स्टेजेस में कैसा काम होगा, फ्रॉम अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन एक बार होगा, फिर उसके बाद अगर समझो पीसीसी होता है तो उसका ये फर्स्ट स्टेज से लास्ट स्टेज का अप टू द प्लास्टिक बोलो, अप टू द पेंटिंग बोलो, अप टू द फ्लोर फिनिशेस बोलो, या फिर डोर्स एंड विंडो फिटिंग बोलो, ग्लास फिटिंग बोलो। तो ये सारा जो लास्ट स्टेज में जो कंस्ट्रक्शन वर्क होगा वो सारा फ्लो चार्ट में वी हैव टू प्रिपेयर, ठीक है ना। So there should be flow chart. It is to be enclosed from first stage up to the last stage. ठीक है। तो फ्लो चार्ट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वाइल प्रेजेंटिंग और वाइल मतलब ये जो भी स्लाइड में प्रेजेंट कर रहा हूँ उसमें जो हाईलाइट कर रहा हूँ दैट पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो फ्लो चार्ट इट इज टू बी प्रिपेयर्ड विथ मटेरियल बैलेंस, यूटिलिटीज एंड प्रोसेस पैरामीटर्स, ठीक है। इसमें क्या क्या कवर होगा कि मटेरियल क्या क्या बैलेंस हो गया, मटेरियल प्रॉपर मतलब इसमें यूज हो रहा है, मटेरियल का अवेलेबिलिटी, या फिर परचेसिंग है, या फिर जो भी है मटेरियल से रिलेटेड पार्ट वो सारा परचेसिंग होगा, मटेरियल बैलेंस होगा, फिर यूटिलिटीज क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगा, फिर और प्रोसेस पैरामीटर्स। नंबर 3 इज कंप्यूट एप्लीकेशंस, कंप्यूट एप्लीकेशन रिजल्ट्स ऑफ द प्रपोज प्रोसेस, यस। आगे अगेन अब लास्ट इसमें क्या होगा कि उसके रिजल्ट्स अपन कंप्यूट करेंगे, कंप्यूट इन द सेंस वेदर वी आर गेटिंग अ फ्रूटफुल रिजल्ट्स फॉर ऑल दिस प्रोसेस। मेरे पास प्रोडक्शन मतलब स्टार्टिंग स्टेज में मैंने सब किया था, बट उसका जो रिजल्ट मिल रहा है वो प्रॉपर नहीं मिल रहा है। दैट मीन्स एट सम स्टेज देयर इज समथिंग व्हिच इज मिसिंग, ठीक है। कोई चीज मिस हो रही है, कोई चीज मतलब उसमें मतलब इट इज नॉट प्रिसाइजली मैनेज्ड, ऐसी कोई चीज मैनेज नहीं हो रही है, सो दैट आवर रिजल्ट इज नॉट गेटिंग इन अ प्रॉपर वे, ठीक है ना। तो कंप्यूट एप्लीकेशन रिजल्ट्स ऑफ द प्रपोजल, रिजल्ट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप सारी चीज मेंटेन कर रहे हैं बट आपका रिजल्ट फेल हो रहा है, क्या मतलब है कि कहीं ना कहीं आपका मतलब वाइल टीचिंग में बोलो, या फिर आपका जब मतलब उसमें जो भी था कहीं ना कहीं देयर इज सम गैप्स, ठीक है। तो वी हैव टू फुलफिल दैट गैप्स सो दैट द रिजल्ट द आउटकम ऑफ दैट रिजल्ट्स और द रिजल्ट शुड बी इन अ प्रॉपर वे, ठीक है। तो ये क्या है, कंप्यूटेशन एप्लीकेशन रिजल्ट्स ऑफ द प्रपोज्ड वर्क इट इज टू बी मेड इन दिस प्रोडक्शन प्रोसेस। Next is environmental aspects. Yes, important is environmental aspect. Environmental nowadays is very very matlab, there is environmental field or environmental impact is nowadays it has been taken care in construction industries as well as production industries, because we have to have a particular type of constructions without hampering the environment, ठीक है ना, without hampering the environment, ठीक है। तो एनवायरनमेंट को अफेक्ट करे बगैर क्या हो सकता है अपने पास, ठीक है। बिकॉज वी हैव टू प्रिजर्व द ट्रीज ऑल्सो, वी हैव टू प्रिजर्व द एटमॉस्फेरिक एयर ऑल्सो, वी हैव टू प्रिजर्व इन द सेंस वी हैव टू वी शुड नॉट पोल्यूट द एयर, वी शुड नॉट पोल्यूट द साउंड, देयर शुड नॉट बी साउंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। ये सारा मतलब अवॉइड करना है और अपना कंस्ट्रक्शन भी काम होना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कंस्ट्रक्शन हो रहा है एक साइड में और दूसरे साइड में वी आर हैम्परिंग द और वी आर
मतलब हैम्परिंग द एनवायरमेंट, ठीक है ना, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स इट हैज बीन हैम्पर्ड, ठीक है। ऐसा नहीं हो, दो एक तरफ कंस्ट्रक्शन भी हो, दूसरी तरफ सेफर साइड में वी आर मतलब ओवेइंग द लॉज, इम्प्लीमेंटेड लॉज विच हैज बीन गिवन बाय द एनवायरमेंटल बॉडीज, ठीक है ना, जो एनवायरमेंटल जो कंसर्न है, वेरियस लॉज आर देयर, वेरियस एक्ट्स आर देयर, तो वी आर फॉलोइंग दैट एक्ट्स, ठीक है, ये दोनों चीजें। द इम्पैक्ट ऑफ द डिस्चार्जिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस इन द, ये एक मतलब प्रोडक्शन का एग्जांपल दिया, बट अपन सपोज मेरे पास अगर स्टील अगर वेस्टेज होता है, तो डंपिंग ऑफ स्टील, ठीक है ना, स्टील कहीं भी डंप कर दिया रस्टिंग हो जाएगा, फिर उससे फिर इफ वी आर मतलब अगर कोई मटेरियल वेस्ट होता है, कंक्रीट वेस्ट होता है, उसको मैंने नाले में या फिर रिवर में उसको बहा दिया, तो क्या होगा फिर, दैट मटेरियल विल कॉज, दैट वेस्टेज मटेरियल विल हैम्पर द, मतलब अगर यहाँ से जा रहा है या फिर एग्रीकल्चरल पर्पज के लिए अगर कोई वाटर यूज हो रहा है, तो वो वाटर फिर पोल्यूट करेगा, और एग्रीकल्चरल लैंड विल बी अफेक्टेड बाय दैट सीमेंट, ठीक है ना, सीमेंट हो, या फिर ये एक प्रोडक्शन का एग्जांपल दिया, सेम एग्जांपल वी कैन हैव फॉर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज आल्सो, है ना। तो ये सारी चीजें वी हैव टू हैव अ बैलेंस between the production, between the construction and the environmental aspects also, ठीक है। The impact of the discharging effluent का एक एग्जांपल दिया ये प्रोडक्शन का, बट वी कैन हैव a same example on construction also. The impact of the discharging influence of the production process in the environment, as well as precautions that have to be taken, will be dealt with in this area of the report. Furnish details of the nature of atmosphere and soil ये वो सारा मैंने अभी जो डिटेल में आपको समझाया कि प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए, साउंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन जो भी था, ये सारा इम्पैक्ट जो रहेगा वो अवॉइड होना चाहिए, मतलब जो भी चीज़ें हैं एटमॉस्फेयर से रिलेटेड, ये सारा चार, उसके लिए आपको अप्रूवल लेना है, ठीक है ना, गवर्नमेंट बॉडीज से अप्रूवल लेना है, इन द सेंस सर्टिफिकेशंस होना चाहिए कि आई विल नॉट अफेक्ट द एनवायरनमेंट, ठीक है, सर्टिफिकेशंस, ठीक है, एनवायरमेंटल एक्ट होगा, एनवायरमेंटल के एक्ट के अंदर में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज को सर्टिफिकेशंस होना चाहिए, अप्रूवल होना चाहिए कि आई विल नॉट अफेक्ट द एनवायरनमेंट, आई विल नॉट, आई विल इन अ सेफर वे आई विल कंस्ट्रक्ट द बिल्डिंग, ठीक है। तो includes copy of the approval from the concerned authorities, it is to be taken care, ठीक है। तो environmental aspect is again very important. नेक्स्ट इज शेड्यूल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। नाउ शेड्यूल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, अब सारा काम होने के बाद अब इम्प्लीमेंट कैसा होगा, व्हाट इज द शेड्यूल, इन व्हाट इन व्हाट सेंस और व्हाट मैनर यू विल इम्प्लीमेंट द कंस्ट्रक्शन वर्क, आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो कैसे मैनर में आप इम्प्लीमेंट करेंगे उसको, ठीक है। द शेड्यूल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, तो डिस्क्राइब हाउ डिजाइन इंजीनियरिंग इरेक्शंस इंस्टॉलेशंस कमिशनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट विल बी कैरिड आउट, इंजीनियर्स का कैसा रोल रहेगा, इरेक्शंस कैसा होगा, इंस्टॉलेशंस कैसा होगा, कैसे कैसा प्रोसेस में कैसे कैसे मतलब वेरियस स्टेजेस में कैसे काम होगा, और प्रोजेक्ट कैरिड आउट कैसा होगा, वेरियस स्टेजेस कैसे रहेंगे फ्रॉम स्टार्टिंग फर्स्ट स्टेज टू लास्ट स्टेज, उसका सारा शेड्यूलिंग विल बी डन, ऑल द शेड्यूलिंग विल बी डन, ऑल द इन अ प्रॉपर मैनर, ऑल द स्टेप्स कवर्ड विल बी टेकन केयर, ठीक है। फर्निश द शेड्यूल ऑफ द इम्प्लीमेंटेशंस, अब उसको शेड्यूल बना के आपको मतलब इट हैज टू बी गिवन टू द हायर अथॉरिटीज। Next is the cost of the project. Of cost of the project, again, the detailed breakup of all the costs related with the project has to be listed. अब कोई भी क्या है कि cost of the project का क्या मतलब कि अब वो break होगा, सपोज वन सी आर का अगर प्रोजेक्ट है, तो अब उसको वन सी आर को कैसे ब्रेक करेंगे आप, तो ये थिंग्स अपने एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग में भी पड़े हैं ना, कोई भी कॉस्ट निकल रहा है कंस्ट्रक्शन प्रपोज बिल्डिंग का, इलेक्ट्रिफिकेशन बोलो, सैनिटरी बोलो, या फिर पाइप फिटिंग्स बोलो, या फिर आर्किटेक्चर का अपने पढ़े थे, है ना, सब स्ट्रक्चर है, सुपर स्ट्रक्चर है, ये सारा चीजें में डिविजन होगा, तो ब्रेकअप्स ऑफ ऑल द कॉस्ट, ठीक है, ब्रेकअप होगा, ठीक है ना। तो ईच एक्टिविटीज और ईच कंसर्न और उसका जो भी रहेगा उसको इंडिविजुअल उसको कुछ ना कुछ कॉस्ट दिया जाएगा, है ना, उसका कुछ ना कुछ वेटेज रहेगा। तो ब्रेकअप्स क्या रहेगा, सबसे पहला ब्रेकअप्स का लैंड, है ना, लैंड इज वेरी वेरी मस्ट, विदाउट लैंड देयर विल नॉट बी एनी कंस्ट्रक्शन, तो लैंड शुड बी ओन्ड बाय द ओनर, ठीक है, लैंड या फिर कोई भी है ना, तो लैंड इज द बेसिक थिंग, अगर मैं कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ कोई चीज़, तो मैं पहले लैंड ओन करूंगा, लैंड मतलब परचेज करूंगा, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन होगा, तो लैंड इज द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में सबसे पहली चीज लैंड है। फिर साइट डेवलपमेंट नंबर 2 क्या रहेगा, साइट डेवलपमेंट, या साइट डेवलपमेंट में क्या आएगा कि बिफोर कंस्ट्रक्शन और बिफोर एग्जीक्यूशन और बिफोर कैरिंग आउट द वर्क, विच डेवलपमेंट्स और विच थिंग्स विच आर रिलेटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ, उसके लिए साइट डेवलपमेंट इज वेरी वेरी,
अंडुलेशन से साइड पे उसको क्लियर कर दिया, उसको मतलब वर्कर्स के लिए अगर क्वार्टर्स बनाना है, वर्कर्स के लिए टेम्पररी शेड्स बनाना है तो शेड्स बनाएंगे, उसका टेम्पररी रोड्स बनाना है तो रोड्स होगा, इलेक्ट्रिकल लाइट्स होगी, टेम्पररी उसमें वाटर सप्लाई लाइन होगी, ऑफिसेज रहेंगे। ये सारा जो है साइट का डेवलपमेंट रिलेटेड बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क, ठीक है। तो वो सारी चीजें साइट डेवलपमेंट में आएगी। नंबर थ्री इज बिल्डिंग्स एंड अदर सिविल वर्क्स, जैसे अभी बताया था मैंने, सिविल वर्क्स है ना, बिल्डिंग एंड अदर सिविल वर्क्स, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरीज, कोई ऐसा आरएमसी प्लांट लग रहा है या फिर हैवी इक्विपमेंट्स लग रहे हैं या फिर एडवांस इक्विपमेंट्स लग रहे हैं या फिर एडवांस मशीनरीज लग रही है, और एडवांस इक्विपमेंट्स लग रहे हैं, तो ये सारा इट इज टू बी अवेलेबल ऑन द साइट। ये भी मतलब इसको भी कॉस्ट लगेगा, ये सब कॉस्ट से रिलेटेड। लैंड को कॉस्ट लगेगा, साइट डेवलपमेंट को कॉस्ट लगेगा, बिल्डिंग एंड अदर सिविल सर्विसेज को कॉस्ट अमाउंट लगेगा, प्लांट एंड मशीनरीज परचेज करने के लिए सम अमाउंट विल बी रिक्वायर्ड, है ना। तो ऑल दिस थिंग्स विल बी रिक्वायर्ड। Next is technical know-how piece. मतलब technical supports will be there if you are hiring an engineers और technical supports अगर hire कर रहे हैं आप, technical staff hire कर रहे हैं तो उसका उनका फीस देना पड़ेगा, या फिर उसकी इनकी पेमेंट्स रहेगी, फीस इन द सेंस पेमेंट्स। अगर कोई हायर कर रहे हैं, सपोज कोई टेस्टिंग है और अपने पास टेस्टिंग नहीं होती है, तो टेक्निकल सपोर्ट, टेक्निकल स्टाफ अगर कोई अपॉइंट हो रहा है कोई स्पेशल टाइप ऑफ वर्क के लिए, तो उसका एज पर आर्ली बेसिस बोलो, एज पर डे बेसिस बोलो, उसको फीस देना है आपको, ठीक है। तो टेक्निकल नो हाउ फीस इट इज टू बी पेड। एक्सपेंसेस ऑन टेक्नीशियंस, ये भी वही चीज़, मतलब ये दोनों थोड़ा सा उसी के पार्ट में आ गया। अगर एक्सपेंसेस दे रहे हैं टेक्नीशियंस को, अगर कोई ऐसे हैवी इक्विपमेंट्स है अपने पास, अगर प्रॉपर मतलब ऑपरेटर्स नहीं है या फिर उसको प्रॉपर वे में अपन उसको वर्क नहीं कर सकते, तो वी कैन हायर अ टेक्निकल स्टाफ फ्रॉम अदर फर्म्स ऑल्सो, ठीक है ना, एक्सपर्ट्स ऑल्सो, तो वी हैव टू पे सम अमाउंट टू दैट। एक्सपेंसेस ऑन टेक्नीशियंस, मिसलेनियस फिक्स assets, some fixed asset, it is to be fixed in a fixed form में कुछ things रखना है आपको, so that it will be used in further मतलब जब construction होगा we will use that amount, ठीक है। तो fixed assets to be kept aside, preliminary estimates to be carried out, preliminary before execution of work, some amount to be kept aside। तो ये प्रिलिमिनरी वर्क के लिए और प्रिलिमिनरी एस्टिमेट्स के लिए अमाउंट इट विल बी रिक्वायर्ड। प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस, ऑपरेशन करने से पहले में कुछ एक्सपेंसेस रिक्वायर्ड होगा, जैसे मशीनरीज है। अब मशीनरीज बाद में ऑपरेट होगी, मगर उससे पहले में उसके कुछ एक्स्ट्रा पार्ट्स रिक्वायर्ड है, या फिर कुछ उसके ऑयलिंग है या फिर ग्रीसिंग है, या फिर उसके पेट्रोल्स रिक्वायर्ड होता है, डीजल रिक्वायर्ड रहता है या फिर कैरोसिन रिक्वायर्ड रहता है, तो प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस रिक्वायर्ड, ठीक है। प्रोविजन फॉर कंटिजेंसीज, अनफोर्सीन एक्सपेंसेस होते हैं, उसके लिए भी प्रोविजन होना चाहिए। एग्जीक्यूशन वर्क जब कर रहे थे, तो अब कैसा है कि काम को ऑन गोइंग वर्क के लिए अब मतलब इन अ फ्लो पैटर्न में अगर काम करना है, तो वी शुड हैव सम अनफोर्सीन एक्सपेंसेस विल बी रिक्वायर्ड, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर अनफोर्सीन एक्सपेंसेस, कंटिजेंसीज, margin money for the working capitals, give details of the some money it is to be kept aside, ठीक है ना, margin money, ठीक है। So these are the cost of the project, these are the various things which has been covered on the project। मतलब ये bifurcation से, these are the bifurcations, breakup is the bifurcations of the various under various heads, ठीक है। ये heads में क्या हो गया, अमाउंट जो रहेगा टोटल कॉस्ट का वो बाइफरकेट होते जाएगा, ठीक है। साइट के लिए अलग होगा, बिल्डिंग के लिए, फिर मशीनरीज के लिए, टेक्नीशियंस के लिए, और फिक्स डिपॉजिट कहीं रखना है फ्यूचर यूज के लिए, प्रिलिमिनरी के लिए, कंटिजेंसीज के लिए, और मार्जिन मनी फॉर वर्किंग कैपिटल्स के लिए, ये सारा मतलब कैप विल बी यूज्ड, ये हेड्स है इसके, ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज मीन्स ऑफ फाइनेंस। अब कैसे आप अरेंजमेंट करेंगे मीन्स ऑफ फाइनेंस, और द डिफरेंट मीन्स फॉर द फाइनेंस, ठीक है। द ब्रेकअप एंड द सोर्सेज ऑफ फंड्स फॉर द प्रोजेक्ट्स आर डिस्कस्ड। इक्विटी प्रमोटर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक होल्डिंग्स एंड अदर। अब कोई some ads or some subsidies or some amount will be taken care from the government funds also, public that is holdings also, financial institutes also। ऐसे कोई फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, फाइनेंशियल मतलब दे सकते हैं कोई, तो वहाँ से वी विल अरेंज द मनी सो दैट अवर पर्टिकुलर वर्क इट इज टू बी कैरिड आउट, ठीक है। तो प्रिफर्ड शेयर्स इट इज टू बी, मतलब शेयर मार्केट से बोलते हो, शेयर्स भी दे सकते हैं कि भाई इतना काम मतलब शेयरिंग से, शेयर मार्केट से भी, या फिर प्रिफर्ड शेयर्स इट इज टू बी टेकन। सब्सिडीज, जैसे मैंने गवर्नमेंट का एग्जांपल दिया, सब्सिडीज मिल सकती है, इन द टर्म ऑफ लोन्स मिल सकते हैं, दैट इज डिबेंटर्स से, मतलब डिबेंटर्स वी कैन हैव अ मनी फ्रॉम दैम। अनसिक्योर्ड लोन से हो सकते हैं, डिफर्ड पेमेंट्स हो सकते हैं, इंटरनल
एक्रोल्स हो सकते हैं, बैंक बोरोइंग हो सकता है, वर्किंग कैपिटल्स हो सकता है या अदर्स हो सकते हैं। दीज आर द वेरियस मीन्स ऑफ फाइनेंस, मतलब यहाँ से आप पैसा ले सकते हैं while executing any work, while construction or executing any work from this various things of various fields we can hire the money. Okay? For profitability estimate, next is nothing but the profitability estimate. Assumptions, projected income statement, projected balance sheet and projected cost, that is cash flow statement. Okay? तो प्रॉफिटेबिलिटी एस्टिमेट, अगर कोई भी चीज इन अ प्रॉफिट वे में अगर एस्टिमेट करना है कि वेदर इट विल बी प्रॉफिटेबल फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, मतलब पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोजेक्ट विल बी प्रॉफिटेबल और नॉट, तो विच थिंग्स टू बी कंसिडर्ड प्रॉफिटेबिलिटी एस्टिमेट। तो अजम्पशंस होगा कुछ ना कुछ, मतलब अपने पास अज्यूम होगा कि ऐसा काम करेंगे यार इन अ प्रॉपर वे में, उसका कोई अजम्पशंस होगा। if it is done in this by assuming this things, it will be profitable, ठीक है ना, assumptions। तो प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट तो भी रहेगा, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट मतलब कहाँ से आ रहा है, फिर कितना बैलेंस हो रहा है, कितना बचा है, और फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट इन द सेंस कैसा आ रहा है और कैसे जा रहा है, मतलब अगर सपोज 10 lakhs अपने पास आ रहा है कहीं से अमाउंट वी आर हैविंग इन इन आवर अकाउंट, तो उसका फ्लो कैसा हो रहा है 10 lakhs में, अब क्या क्या काम होंगे, कैसा फ्लो होगा उसका। तो कैश फ्लो इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बैलेंस शीट कितना बचा है उसके लिए भी मालूम होना है, कैश फ्लो कैसा हो रहा है, मतलब इनकमिंग एंड आउटगोइंग्स, ठीक है ना, इनकमिंग एंड आउटगोइंग्स फॉर द कैश फ्लो उसका कैसा होगा। और इनकम का स्टेटमेंट स्टेटमेंट ठीक है ना, स्टेटमेंट इनकम स्टेटमेंट जैसा आप बैंक स्टेटमेंट देखते हो वैसा इनकम का स्टेटमेंट रहेगा, ठीक है। तो प्रोजेक्ट से रिलेटेड इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो, ये सारे थिंग्स थोड़ा सा एक ब्रॉड वे में आप स्टडी कर रहे हैं, बट यू हैव टू राइट डाउन विद हेल्प ऑफ योर ओन वर्ड्स, ठीक है ना, जैसा आप सिंपलेस्ट वे में आप लिख सकते हैं, तो यू शुड राइट डाउन ऑल द थिंग्स इन अ प्रॉपर वे, ठीक है। नेक्स्ट इज द अप्राइजल बेस्ड ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी एस्टिमेट्स। अप्राइजल से होगा अब प्रॉफिट से डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉफिट, अगर सपोज डिपेंडिंग अपॉन द लास्ट 10 years है ना, तो अपन कैसा है कि अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिटेबल डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉफिट अगर हो रहा है तो उसके बेस्ड पे क्या अप्राइजल रहेगा, ठीक है। ठीक है, तो give estimates of the cost of the productions and work results for the last for the first 10 years in the NHS। फर्स्ट 10 years में कितना प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन इन द सेंस कितना कंस्ट्रक्शन हुआ, क्या क्या इक्विपमेंट्स या फिर कैसे उसके थे, तो 10 years का वी हैव टू गिव द डिटेल्स, ठीक है ना, उसके बेस पे अपन उसका अप्राइजल बनेगा कि वेदर इट इज मतलब प्रॉपर वे में हुआ था नहीं हुआ था, उसका अप्राइजल रिपोर्ट विल बी कैरिड आउट डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉफिट, डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉफिट अप्राइजल रिपोर्ट बन रही है, मगर डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉफिटेबल एस्टिमेट। तो किसके बेस पे बनेगा, 10 years के रिजल्ट के बेस पे बनेगा, कितने ईयर्स के, 10 years के रिजल्ट्स के, ठीक है। इट इज प्रोवाइडेड इन द एनेक्सर, सर ये सारी चीज एनेक्सर में होती है, इट विल बी प्रोवाइडेड इन द एनेक्सर। प्रोवाइड अ कैश फ्लो स्टेटमेंट, अभी अभी पढ़े थे अपन ने, कैश फ्लो का स्टेटमेंट बताना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, फॉर द कंपनी एज अ होल। फिर प्रोजेक्ट बैलेंस शीट भी बताना है, वही चीज़ अभी जो फिर से पढ़े थे वही चीज़ रिपीट हो गई, बैलेंस शीट फॉर 10 years, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि बैलेंस शीट किसके कितने साल की बनेगी आपकी, 10 years के लिए बनेगी। गिव द ब्रेक इवन एंड सेंसिटिविटी एनालिसिस फॉर द प्रोजेक्ट, अगर ब्रेक होता है, अनइवन ब्रेक होता है, या फिर सेंसिटिविटी, अगर कोई एनालिसिस में ऐसा कोई मतलब पार्ट है, ऐसी कोई एक्टिविटी है, सेंसिटिव एक्टिविटी है, तो इट शुड बी मेंशन। ये सारा अप्राइजल इट इज बीइंग बेस्ड ऑन द प्रॉफिट, प्रॉफिट के बेस पे अप्राइजल होगा, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉफिट अप्रूवल, अप्राइजल इज द अप्रूवल। इकोनॉमिक कंसिडरेशंस, गिव prices of the competing import and export products with breakups and the line cost and selling price। अब क्या है इकोनॉमिक कंसिडरेशंस में, इकोनॉमिकल वे में, इकोनॉमिक कंसिडरेशन में क्या होगा कि we have to compete the import as well as competing the import as well as export products, ठीक है। मतलब उसका कितना इंपोर्ट अपन ले सकते हैं, मतलब एक्सपोर्ट कितना हो सकता है, या फिर इंपोर्ट ले रहे हैं, या फिर मतलब ऑल दिस बैलेंसिंग, मतलब प्रॉपर वे में देयर शुड बी देयर। Provide explanation for differences in prices between the product and those imported। अगर समझो कोई भी चीज़ प्रोड्यूस हो रही है अपने पास तो उसका क्या प्राइस है, और कोई चीज़ अपन बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं उसका क्या प्राइस है, तो दिस डिफरेंस इट इज़ टू बी कैरिड आउट, ठीक है। कोई चीज़ अपने पास नहीं अवेलेबल नहीं है तो वी आर इम्पोर्टिंग फ्रॉम द अदर सेक्टर्स पे बोलो, अदर रीजन्स बोलो, अदर मतलब कंट्रीज भी हो सकता है, अदर रीजन्स भी हो सकता है, आउटसाइड द सिटी हो सकता है। तो
if we are importing some type of product, तो we should maintain a difference, ठीक है. अगर मेरे पास से ले रहा हूँ, मेरे पास अगर वही चीज़ हो रही है और मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस, है ना. उसमें क्या था, मेरे पास क्या है ना. कॉन्सिक्वेंसेज वी हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन आवर प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्ट विच हैज बीन इम्पोर्टेड फ्रॉम द अदर सिटीज. सेम प्रोडक्ट है, बट अगर इंपोर्ट कर रहा है तो उसका 10 रुपये है, मेरे पास 8 रुपये है, तो वाई वी आर कीपिंग 8 रुपीज एंड वाई वी आर एक्सपोर्टिंग टेकिंग सेम प्रोडक्ट विथ सेम that is the specifications and same all the things with 10 rupees. ठीक है, ये सिंपल एग्जांपल दिया. ठीक है, so there should be some difference in price between the product and the and those imported. ठीक है, a brief write-ups on the economic benefits to the region and the country due to the proposed work. अब एक राइटअप्स लिखना है, राइटअप इन द सेंस एक राइटिंग वे में और डिस्क्रिप्शन इट इज टू बी गिवन रिगार्डिंग द बेनिफिट्स, रिगार्डिंग द इकोनॉमिक बेनिफिट्स. आप राइटिंग में देंगे कि ये काम ऐसा होगा तो बेनिफिट होगा, ठीक है ना, विद इन द कंट्री ड्यू टू द प्रपोज प्रोजेक्ट. अब ये जो काम हो रहा है, अब राइटिंग में देना है कि इन अ प्रॉपर वे, इन अ प्रॉपर चैनल और इन अ प्रॉपर मतलब ऑल द थिंग्स बाय कंसर्न प्रॉपर वे में अगर होगा तो इट विल बी बेनिफिशियल. तो इकोनॉमिक बेनिफिट्स आपको राइटिंग में देना, ब्रीफ राइटअप्स टू बी गिवन ऑन इकोनॉमिक बेनिफिट्स. अपेंडिसेस, एस्टिमेट्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शंस, कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन, ये सारी चीजें आप इंक्लूड करेंगे इसमें. ठीक है ना, क्या क्या चीजें इंक्लूड होगी, एक तो कॉस्ट ऑफ दैट इज प्रोडक्शन, उसका कितना प्रोडक्शन कॉस्ट रहेगा. डिप्रिसिएशन क्या रहता है, इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये वी विल स्टडी इन डिटेल इन दिस सब्जेक्ट ऑल्सो, इन एस्टिमेटिंग ऑल्सो. व्हाट इज डिप्रिसिएशन. डिप्रिसिएशन इन शॉर्ट में बता देता हूँ. व्हाट इज डिप्रिसिएशन. डिप्रिसिएशन इज द लॉस ड्यू टू wear and tear. Loss due to wear and tear. In short words में क्या होगा. What is depreciation? Depreciation is the loss of the material or the loss of the structure ड्यू टू वियर एंड टीयर. अगर समझो एटमॉस्फेरिक एक्शन से, जैसा मेरी बिल्डिंग है, 5 साल के बाद 10 साल के बाद मेरी बिल्डिंग का प्लास्टर क्या हो जा रहा है, निकलते जा रहा है. ठीक है ना, 15 ईयर्स के बाद डिप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग होगा. या फिर कोई मशीनरी ले रहा है, मिक्सर मशीन लिया था मैंने 5 साल पहले, अब क्या होगा 5 साल के बाद, अब मेंटेनेंस हो रहा है उसका, डिप्रिसिएशन हो रहा है. ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन बाय वेरियस मेथड्स. ठीक है, by various methods. We will study in detail the various methods used for depreciation. वो आगे आएगा. But in short, depreciation is wear and tear of a particular that is commodity. कोई भी commodity बोलो आप, उसका wear and tear. ठीक है. कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड मार्जिन मनी फॉर द वर्किंग कैपिटल. अब उसका कैलकुलेशन करना है. ठीक है ना, किसका कैलकुलेशन करना है, वर्किंग कैपिटल का. तो कैपिटल एंड मार्जिन मनी फॉर द कैपिटल, वर्किंग कैपिटल्स, रीपेमेंट, इंटरेस्ट, शेड्यूल ऑफ द टर्म लोन्स एंड फाइनेंस. अगर किसी से ले रहे हैं उसका लोन लिया, उसका कितना इंटरेस्ट है, इट इज टू बी पेड इन, उसका इंटरेस्ट कितना रहेगा, उसका क्या रहेगा, उसका टर्म्स एंड कंडीशंस, उसका रीपेमेंट कैसा होगा इन द फॉर्म ऑफ लोन जो अपने लिए थे. तो अब उसका इंटरेस्ट के बेस पे कितना इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ रहा है, सारा जो चीज़ें हैं इट विल बी कवर्ड. नेक्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेस. कोई भी चीज़ का उसका टैक्सेस इट इज़ टू बी पेड. जैसा वेरियस टैक्सेस, गवर्नमेंट फॉर्म्स का म्यूनसिपल टैक्सेस होते हैं, वाटर टैक्स होता है, लैंड टैक्स होता है ना, वेरियस टैक्सेस आते हैं. तो कैलकुलेशन ऑफ द वेरियस टैक्सेस रिलेटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ इट. ठीक है, various coverage ratios it is to be covered, various evaluation techniques to evaluate the protection as viability. ठीक है, तो अब उसका एवेल्युएट करना है, उसके प्रॉपर वे में मतलब एग्जीक्यूट हो रहा है नहीं हो रहा है, उसके टेक्निक्स वेरियस इवेल्युएट, वी हैव टू इवेल्युएट द टेक्निक्स. sensitivity analysis, whether it is in a proper manner में कंस्ट्रक्शन हो रहा है. सेंसिटिविटी इन द सेंस कैसा है कि प्रिसाइज, देयर आर सम प्रिसाइज एक्टिविटीज है ना, कुछ ऐसे एक्टिविटीज रहता है कि इट रिक्वायर्स मतलब प्रॉपर अटेंशन इट इज टू बी गिवन फॉर पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्टिविटी. कोई एक एक्टिविटी रहेगी, उसको प्रॉपरली एनालाइज करना है. तो सेंसिटिविटी ऑफ एक्टिविटीज इट इज टू बी टेकन, इट इज टू बी मेंशन. Next, these are the guidelines for preparing of. These are the guidelines for the preparing of detailed project reports. The different guidelines. Stakeholders analysis होगा, सबसे पहले introductions होगा. Stakeholder analysis. Stakeholder analysis. What is stakeholders? These are the experienced staff. मतलब जो मतलब they are having a vast knowledge of the field. तो स्टेक होल्डर से आप अपना क्या करना है, मतलब वी शुड हैव इन कांटेक्ट विद द स्टेक होल्डर्स. तो स्टेक होल्डर से आप कांटेक्ट करके सो दैट आवर प्रोजेक्ट इट इज टू बी प्रॉफिटेबल. ठीक है ना, तो स्टेक होल्डर एनालिसिस रहेगा, स्कोपिंग स्टडी रहेगा, स्कोपिंग ऑफ द प्रोजेक्ट रहेगा, प्रॉपर स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट रहेगा, प्रोजेक्ट प्रपोजल टेम्पलेट रहेगा.
सेक्शन 1 में क्या आएगा, देखो बैकग्राउंड ऑफ द प्रोजेक्ट एंड अदर बेसिक इन्फॉर्मेशन आएगा, टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट। अब बैकग्राउंड में क्या रहेगा, बैकग्राउंड ऑफ द प्रोजेक्ट में क्या रहेगा, टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, डज द प्रोजेक्ट फॉल अंडर द एग्जिस्टिंग, दैट इज द मिशन मोड प्रोजेक्ट, इफ यस इंडिकेट विच, ठीक है। अब कोई से एक मिशन में अगर आता है प्रोजेक्ट तो वो आपको बताना है, ठीक है। उसकी फिर एलिजिबिलिटी टेस्ट रह गई, फिर रोल आउट रहेगा, प्रोजेक्ट इनिशिएटर दैट इज डिटेल्स रहेगा, जिसने इनिशिएट इनिशियल जो किया था, स्टार्ट जो किया था, इनिशिएट जो किया था उसका डिटेल्स रहेगा। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी डिटेल रहेगा, लोकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, कहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे आप प्रोजेक्ट उसके बारे में डिटेल्स रहेगा, ठीक है ना, लोकेशन उसका, ठीक है। नेक्स्ट इज द प्रोजेक्ट ओवरव्यू, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स, अभी बताया था स्टेक होल्डर्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। नेक्स्ट इज द इंट्रोड्यूस द प्रॉब्लम इशू दिस प्रोजेक्ट इज डिजाइन टू एड्रेस। अब क्या एड्रेस करेगा, मतलब क्या प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, या फिर क्या कोई इश्यू सॉल्व करेगा, या फिर इट इज बेनिफिशियल टू द सोसाइटी और नॉट। तो क्या मतलब कौन से डायरेक्शंस में आपका प्रोजेक्ट बेनिफिशियल होगा टू द सोसाइटी, ठीक है ना। तो उसका वेदर वी आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद द सोसाइटी, कोई इश्यू सॉल्व कर रहे हैं आपके प्रोजेक्ट के जरिए से, या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट है आपका, तो क्या उसका इम्प्लीमेंटेशन मतलब वेदर इट इज हेल्पफुल टू द सोसाइटी इन अ डायरेक्ट मैनर और इन अ इनडायरेक्ट मैनर, ठीक है। तो नंबर बी। नंबर सी क्या है, देखो यहाँ पे नंबर सी क्या है, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम्स, अगर कोई कॉजेज है इफेक्ट्स है तो उसकी क्या सोल्यूशन होगा, उसके इफेक्ट्स क्या रहेंगे और उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहेगा उसका बताना है। डी क्या है, आइडेंटिफाई द कैटेगरीज अंडर विच द सर्विसेज फॉल, गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट को टू सिटीजन, दैट इज इन शॉर्ट G2C इसके अंदर लाई हो रहा है, या फिर गवर्नमेंट टू बिजनेस में लाई हो रहा है, या गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के लोग ही कर रहे हैं, या फिर गवर्नमेंट का लोग इट इज मतलब प्रोजेक्ट है सिटीजन से रिलेटेड है, या फिर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड है। तो कैटेगरी किस कैटेगरी में वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोजेक्ट इट इज टेकन केयर, ठीक है। Whether it is under G2C, whether it is under G2B, or whether it is under G2G. Highlight in concrete terms the improvements invested for each of these services in terms of service levels, that is past experience, फिर outline the about term project, summary of the total project cost and sources of funding। मतलब ये प्रीवियस मतलब ये प्रीवियस का एक्सपीरियंस मालूम करना है, ब्रॉड टर्म प्रोजेक्ट का आउटलाइंस बनाना है, समरी उसका कितना रहेगा प्रोजेक्ट कॉस्ट के बारे में समरी, ठीक है। हाँ, और सोर्सेज ऑफ फंडिंग कैसा आप फंड अरेंज करेंगे, ये सारा मतलब आपने जो अभी किए थे, अभी पिछले साइड्स में जो पढ़े थे उसी को प्रॉपर सेक्शंस में इसने डिवाइड किया, ठीक है ना। सेक्शंस में वही चीज़ इंक्लूड हो रही है, बट दिस आर द पैटर्न, ये ऐसे पैटर्न में आपको प्रोवाइड करना है, ठीक है ना, ये ऐसे हेड्स में ये प्रोवाइड करना है। तो ये सारी चीज़ें वी हैव ऑलरेडी स्टडी, सोर्सेज ऑफ फंडिंग अपन अभी पिछले स्लाइड्स में पढ़े थे, समरी ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट कैसे समरी बनाएंगे आप वो पढ़े थे अभी अपन ने, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें इन अ प्रॉपर वे वी हैव टू फीड द डाटा इन अ प्रॉपर। लास्ट इज नथिंग बट सेक्शन 3 में क्या रहेगा, सेक्शन 3 गवर्नमेंट के जो ये सेक्शन है उसमें सेक्शन 3 में क्या इंक्लूड होगा, दैट इज प्रोजेक्ट डिटेल्स इंक्लूडिंग इट्स इम्प्लीमेंटेशन मॉडल। अब कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे ये सेक्शन 3 में आएगा। आपका गोल क्या रहेगा, आपका एम, आपका मोटिव, आपका गोल क्या है, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है या फिर प्रोडक्शन ऑफ एनी कम्युनिटी है, या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग है, या फिर रोड हाईवे ब्रिजेस है, क्या है आपका गोल क्या है, और उसके जरिए से विच व्हाट इज अचीवमेंट फॉर दिस, विच थिंग इट इज अचीव्ड बाय योर प्रोजेक्ट, तो उसका गोल। Objectives, identify smart, that is objectives, there should be some objectives of your project, some stakeholders analysis रहेगा, services and service levels रहेगा, implementation how you will implement this, key activities क्या क्या रहेंगे आपके, organization structure कैसा organize करेंगे आप सारे activities G में ना। एच क्या है, assumptions क्या रहेगा, रिस्क मैनेजमेंट रिलेटेड पार्ट, सेफ्टी किट्स प्रोवाइडेड रहेगा, या फिर सेफ्टी मेजर्स क्या क्या प्रोवाइड करेंगे आप, उसके सेफ्टी रिस्क मैनेजमेंट कैसे अवॉइड करेंगे, तो assumptions एंड रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। Estimated demand for and that is growth rate of the proposed service in the short medium and long term, आपका क्या डिमांड रहेगा बताओ, वेदर इट इज अ शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट, लॉन्ग टर्म, मीडियम, कैसे प्रोजेक्ट है, वेदर वी विल फुलफिल द डिमांड्स ऑफ द सोसाइटी। तो ये सारी चीज़ें विल बी टेकन केयर। प्रोजेक्ट कॉस्ट, प्रोक्योरमेंट एंड फाइनेंसिंग कैसा रहेगा आपका, कैसा प्रोक्योर करेंगे, कैसा अरेंज करेंगे, कैसा मतलब लेंगे आप प्रोजेक्ट का कॉस्ट, अरेंजमेंट कैसा होगा, वो सारी चीज़ें, ठीक है। फाइनेंसिंग पार्ट,
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स रहेगा, अगर कुछ चीज़ें ऐसा रहेगा कि पब्लिक से भी लेंगे क्या आप कॉमन मैन से, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इट इज़ टू बी कैरिड आउट, ये भी एक डिटेल वे में वी विल स्टडी व्हाट इज पीपी ट्रिपल पी, ठीक है ना, पब्लिक से कुछ होगा, प्राइवेट से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी प्लान अभी पढ़े थे अपने, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट से सस्टेनेबिलिटी प्लान रहेगा, इम्प्लीमेंटेशन अरेंजमेंट रहेगा, एंड डिटेल्ड दैट इज वर्क प्लान, ठीक है, देयर शुड बी अ डिटेल प्लान, वर्क प्लान फॉर दिस प्रोजेक्ट। तो दिस थिंग्स विल बी कवर्ड इन सेक्शन 3। तो ओवरऑल में अभी अपन ने जो पढ़े हैं डीपीआर में, इसका जो आज के लेक्चर्स में, तो ये सारा इन शॉर्ट ब्रीफ में क्या है, इट हैज बीन कवर्ड इन ऑल द 3 सेक्शंस। जो लास्ट में मैंने 3 स्लाइड्स बताया था, वो सारा जो डीपीआर में स्टडी करे, ऑल द थिंग्स इट हैज बीन कवर्ड इन दिस 3 सेक्शंस, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। मतलब अगर गवर्नमेंट के इसमें अगर करना है तो ये तीनों सेक्शंस में ऑल द थिंग्स व्हिच हैज बीन स्टडीड इन वेरियस स्लाइड्स इट हैज बीन कवर्ड इन दिस 3 सेक्शंस, सेक्शन 1, section 2 and section 3। So is that clear to everyone? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. तो ये सारा डीपीआर के अपन ने कवर किए थे। ये तीनों जो सेक्शंस मैंने लास्ट के जो 3 स्लाइड्स में बताया था, ये सेक्शंस इट हैज बीन मतलब इट हैज बीन असाइंड और इट हैज बीन उसको बोलेंगे इम्प्लीमेंटेड ऑन गवर्नमेंट फॉर्म्स में, ये सारे इम्प्लीमेंट होते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे तीनों सेक्शंस के रिलेटेड अपन ने डाटा कलेक्ट किए हैं। वी आर कलेक्टिंग द डाटा एज पर दीज 3 सेक्शंस, ठीक है। ये 3 सेक्शंस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होगी, वही चीज़ अपन ने डीपीआर में स्टडी की है डिफरेंट स्लाइड्स में। इसलिए ये लास्ट में, अब यहाँ पे डीपीआर के लास्ट के 3 स्लाइड्स में 3 सेक्शंस अपन ने कवर किए हैं, और वही इंपॉर्टेंट है, और उसी से रिलेटेड मैटर्स में, और उसी से रिलेटेड मटेरियल्स वी हैव कलेक्टेड, ठीक है। तो ये सारा वी हैव स्टडीड इन दैट इज डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। So here we will end this today's lectures. So is that clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So नेक्स्ट इसमें वी विल हैव सम डिफरेंट टॉपिक। आज असल में थोड़ा सा मैंने ज़्यादा मतलब कवर कर लिया थ्योरेटिकल पार्ट, बिकॉज डीपीआर आज कंप्लीट करना था, क्योंकि अपन ने डीपीआर पिछले लेक्चर्स में स्टार्ट किए थे, वो इनकम्प्लीट रह गया था। तो हियर वी हैव कंप्लीटेड द डीपीआर कंप्लीट, ठीक है ना। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपन ने आज के लेक्चर्स में पूरा कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट बिट अपन कवर करेंगे नेक्स्ट इसमें, ठीक है। डीपीआर का नहीं रहेगा, बट डिफरेंट मतलब कंसेप्ट विल क्लियर इन नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। So give the attendance. Roll number 3. Roll number 1 to 10. Roll number 2.